So the mnemonic secret, आपने कभी सुन डिस्कस किया है यहाँ पे secret? So I'm going to talk about secret of secret. Secret word में क्या छुपा है, क्या secret छुपा है? So first letter क्या है? S. S stands for self-management. Self-management. Now to manage the self, firstly we should know the self. अभी मैं पानी का बॉटल इधर यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ग्लास में पानी दे दो थोड़ा सा. So we should know what is self. और उधर ही अपना बेसिक प्रॉब्लम है. बस हमको सेल्फ क्या है मालूम है. ओके, हिंदी sometimes is okay or you want pure English is okay? Hindi English okay. Hindi English okay? Yes, yes. If somebody who is hardcore South Indian. Huh? Okay. I will try to stick to as much. In pure English is also okay, na? No. So basically we don't realize what is the self. Once we realize that the self, me, myself means a soul. I am a soul. Then automatically all our requirements go down. The moment we consider ourselves body, then I want food. The food may be, then I want to eat this. I want to eat that. I don't want to eat this. Then we consider ourselves body, then we get attracted to other bodies also. Because we consider ourselves body, we consider themselves also bodies. Okay? That's how people get attracted to heroines, movie stars, Instagram stars and reel stars. They do all makeup and just 10 minutes, 15 minutes they do like this and we do. Because we forget that they are also not the body, I am also not the body. So nowadays with social media they show photographs of the actors and actresses in their childhood, baby. We don't get attracted, right? We get photographs of the actresses of the previous generation getting old and walking with the stick. We don't get attracted to them also. But when they were young, people used to go crazy. So people don't realize that how body is changing, and only in this particular age in which you are, when the body looks beautiful, we want to exploit it. And therefore, till the point, here we are now going to talk about satisfaction. So the first thing in satisfaction is till the point you don't realize that you yourself are soul. You are never going to be satisfied. Krishna, therefore, in Bhagavad Gita, speaks one verse and gives us a concept called as contact happiness. Contact happiness. Yehi samsparshaya bhoga dukkha yoneva eva. Contact happiness means till the point the senses are in contact with the sense object, you are happy. पिज्जा जब तक आपके मुंह में घूम रहा है, रोल हो रहा है, तब तक हैप्पीनेस है. गले के नीचे गया, हैप्पीनेस खत्म. जब तक आप मूवी देख रहे हैप्पीनेस है. मूवी खत्म, हैप्पीनेस खत्म. मूवी खत्म होने के बाद इमीडिएटली टेंशन आता है ना अपने को, अरे कल ऑफिस जाने का है, अरे स्कूल को जाने का है. मैं तो जब भी मूवी देख के बाहर आता था ना, मेरे को ऐसा एक अलग सा ऐसा टेंशन. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि बाहर आते तो ऐसा एक डिप्रेशन आता है, बहुत काम बाकी है,
As if थिएटर में जाने से पहले हम हमारा पार्सल वो दरवाजे के ऊपर डाल के निकल जाते हैं, वापस आते वो वापस गिरता है हमारे साथ. So we have to realize that self, and then we have to realize the soul. We have to realize the super soul which is there in everybody's heart and in my heart also. So part of self-management is realizing soul. Part is also realizing super soul and our relation with it. The super soul is always there with us. He is watching everything you are watching. Whatever we are watching, he is watching. हमको कभी कभी लगता है कि डिलीट हिस्ट्री किया तो बच गया मैं, नहीं, बट वो उन्होंने ऑलरेडी नोट कर लिया. सो ऑलवेज रिमेनिंग अवेयर दैट लॉर्ड कृष्णा, whose name I am chanting and before whom I am praying, and whose devotee I want to become, and whose devotee people recognize me as. लोग मुझे कृष्णा का भक्त बोलते हैं, वो मेरे हार्ट में है और वो सब देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ. ओके. और फिर लोग हमको बोलते प्रभु जी आप तो ग्रेट होता है. ग्रेट तो but then you know here is Krishna who is watching everything. So realizing that also. So always remaining conscious of the soul, that I am a soul, not this body. So that gives us satisfaction. Because the moment we consider ourselves body, the hankering of the body starts. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. Right? ये देखना है, इसको टच करना है, ये सुनना है, ये सूंघना है. I want this happiness, all our happiness. So Krishna talks about contact happiness. Any happiness related to body is there up to the point where we are in contact with that sense object. Whether the happiness is of sex, whether the happiness is of eating food, activity over, happiness is over. In this, Prabhuji was talking about drama festival 2024, where I had acted as Lord Shiva. And some dialogues, you know, they had such a deep impact, which I said, because वो क्या होता है, every Saturday Sunday practice होता है, दो चार बार वो ड्रामा में हम वो डायलॉग्स बोलते हैं. तो मेरे माइंड में वो सारे डायलॉग्स रह गए. तो मेरा एक ऐसा डायलॉग था जब मैं नंद भवन में भिक्षा मांगने जाता हूँ और यशोदा माई फूड लेके बाहर आती. And she said, are you here for some dakshina? Food. So he says, today I will eat this sumptuous food, tomorrow I will be hungry again. ऐसा मेरा डायलॉग. तो मुझसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ. तो इसका मतलब ये this applies to every material happiness. Today I will have this happiness, tomorrow I will be hungry again for that happiness. And we have seen that. हमारी इच्छा थी कि ये देखो, वो देखो, ये करो, वो करो, सब करने के बाद भी वो करने की इच्छा खत्म नहीं होती. वो इच्छा और बढ़ जाती. So therefore वो इच्छा पूरी करने के पीछे जाने में पॉइंट ही नहीं है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है. So then, you know, she said, do you want some money? So he said, who in this world is satisfied with money? Then he, you know, tells Mother Yashoda that I want to see your son. So she said, no, you have snakes and how can I allow you? What if one of the snakes falls on him? And Lord Shiva says, no, your son will never be scared of snake. He sleeps on a snake. Later on in his life, he will have to dance on a snake. She said, no, you go from here. And, you know, she said, this Vrindavan has many boys, you see them. She said, no, but आनंद तो तेरे लाला के दर्शन से मिले, क्योंकि he is source of all the आनंद. So happiness
So basically, we are never going to be satisfied in this world until and unless we start becoming spiritual and start seeking spiritual happiness. That's the secret of satisfaction. ये मटेरियल के पीछे कभी नहीं होने वाले सेटिस्फाइड. कुछ भी देखो, किसी को भी छुओ, किसी को गले लगाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो. इतनी बार हम कर चुके हैं ये सब कुछ, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं. So that is S. Now second is E. E stands for effort management. So S stands for self management, and E stands for effort management. Effort मतलब आपके प्रयास आप कैसे कर रहे हैं. Now efforts are refers to any effort. Efforts we are doing in material things. Efforts we are doing for spiritual things. So my experience was that the whole world is doing efforts. A devotee is also doing efforts. We are talking about material efforts, your studies, your job. But difference is a devotee is chanting also. And that gives him a boost. So Arjuna was also putting effort, Duryodhana was also putting effort. But Arjuna had Krishna with him. So in effort management, Krishna should be there with us. Then, our efforts become less. Therefore in Chaitanya Charitamrita it is said, easy things become difficult if you forget Lord Chaitanya, and difficult things become easy if you remember Lord Chaitanya. और मेरा खुद का मेरे स्टूडेंट डेज में इतनी बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना कि बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू कीप ऑन चैंटिंग, और वो चैंटिंग करने के बाद मैं जब पढ़ने को बैठता था ना तो हमारा माइंड ऐसा काम डाउन होता है. एंड आई यूज्ड टू रीड सो फास्ट, चैप्टर के ऊपर चैप्टर खत्म करता था. और मेरे दोस्त पढ़ते थे, बोलते थे तू कितना फास्ट पढ़ रहा है. और एग्जाम को जाते समय ना ऐसा हो गया, मेडिसिन के हमारे पेपर्स थे, मेडिसिन पेपर 1, पेपर 2, पेपर पहले 2 पेपर में ऐसा रैंडमली टैक्सी से हम लोग एग्जाम को जाते थे. मैं जो भी पढ़ता था वो एग्जाम में आगे बैठ के पढ़ रहा, वो पीछे से देखते थे. पहले दिन उनको रियलाइज हुआ कि ये जो जाते वक्त पढ़ता है ना टैक्सी में, उधर लॉन्ग क्वेश्चन आते. दूसरे दिन उन्होंने देखा ऐसा ही हो. तो तीसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया मुझे फॉलो करने के लिए. तो उन्होंने देखा पीछे से क्या पढ़ रहा है. तो हमारा एक्सरे रेडियोलॉजी का पेपर था, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं. तो मैं पढ़ रहा था अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल. प्रेग्नेंट फीमेल लेडीज जो होते हैं उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं बच्चों को. तो रेडियोलॉजी में ऐसे मैं वो पढ़ रहा तो सभी वो तीनों ने पढ़ने को चालू किया. और वो बोले घुसले तेरे भरोसे पढ़ रहे हैं. तो वो क्वेश्चन आया ही नहीं. जब हम टैक्स में बैठे तो वो मेरे को मार हमारा 10-15 मिनट हमने सब कुछ छोड़ के एग्जाम के पहले और सब पढ़ा और वो आया ही नहीं. तो मुझे भी बहुत बुरा लगा यार, इनका फेथ उड़ गया कृष्ण के ऊपर से. फिर मेडिसिन सर्जरी पेपर और गायनेकोलॉजी का जो हमारा पेपर था ना 5वें दिन, उसमें वो फुल क्वेश्चन करके आ गया और किसी ने पढ़ा नहीं था. ये 3 लोग मेरे साथ 2 दिन पहले पढ़ चुके थे. फिर वो आके सॉरी बोले, सॉरी. तो 3 दिन बाद आया. भगवान के अगर देर है लेकिन so efforts become so easy. Things become so easy. In my life, I started coming to the temple for chanting. Of course, I was introduced to Krishna consciousness somewhere in 94. In 96 onwards, I started coming to the temple for chanting every day. तो वो मैं लाइफ में करता रहा
I'm not saying promoting everybody that you come to the temple. It's very difficult, but at least devotees group बना के chanting करना चाहिए. Chanting should be always in association. And I was always dependent on the Lord. When I joined my job, my salary was 7.5 thousand rupees, and it was not a big amount. आप सोचेंगे तभी के ज़माने में नहीं ऐसा नहीं. It was not a big amount because तभी भी दिल्ली का टिकट 500 rupees था. यात्रा का charges used to be 2-3,000 rupees. So 7 point. I got married with that salary also 7.5 thousand. And when my wife, she came to stay with me, that month I went to collect my salary. It was May 2020. I went to collect my salary and they said नहीं इस महीने में salary अभी नहीं दे रहे. मैं बोला क्या हो गया? बोले वो 5th पे कमीशन का 6th पे कमीशन पे 4th पे कमीशन का 5th पे कमीशन पे शिफ्ट हो रहा है. आपका सैलरी भी 17,000 हो रहा है. So exactly the month my wife came to stay, वो सैलरी 17,000 हो गया. फिर 6 months I finished my post graduation and I shifted. In Dadar I met a devotee and I was looking out for a home after finishing my education in JJ Hospital. And he says probably दे दो 4-5 हजार रुपए भाड़ा दे दो आप लोग जितना दिन रहने का है. And he offered a house to me in Shivaji Park. I stayed there for 2 years. After that in KM there was a warden's quarter in the boys hostel. And nobody was ready to become warden because वो 1000 बच्चे लोग को समझ. तो मैं खुद से सामने से केएम के लोगों ने पूछा कि सर आप शिवाजी पार्क से भी डबल साइज का यहाँ पे क्वार्टर है ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन वाला, आप रहोगे क्या? तो मैं बोला हाँ. तो उधर जैसे मैं उधर गया क्वार्टर देखने को तो बाहर आया तो एक आदमी खड़ा था. वो बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये क्वार्टर का रेनोवेशन करना है, तो आपको शिफ्ट होने से पहले हम लोग रेनोवेट पेंट करके ही देते हैं ना आपको. मैं बोला तू कहाँ से आ गया? तो सर आपको क्या चाहिए? मैं बोला देख तू यहाँ पे ना मुझे मंदिर चाहिए. तो सर मंदिर में मैं कबर्ड के जैसा कुछ बना के दे सकता हूँ और उसके ऊपर ऐसे फिर उसके ऊपर थोड़ा स्टेप्स बनाना ऐसे मार्बल के. And he constructed a marble temple, the DMC contractor in my house. So I just realized कि मुझे खाली चैंटिंग करना है. 18 साल में वहाँ पे रहा उस घर में. At the end of 18 years, I left that and I was looking out for a house so that I can again come to chant every day. I don't want to miss it. Although I have a house in Borivali, I have a house in Mira Road. But एक बार मैं वहाँ पे गया था, I may not. So बस प्रे का तो सामने से ये जो हमारा हरे कृष्णा टेलीविजन है ना, उसके ओनर है वैष्णव सेवा प्रभु. So he had a flat in Pare. और अभी कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया ना सब. सो ही कॉल्ड मी, से अरे प्रभु वो सारे वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो जो बच्चे रहते थे यहाँ पे भाड़े पे सब चले गए. फ्लैट 1 साल से खाली पड़ा है, तुमको चाहिए क्या? Huge flat, means 4 rooms and every room has a balcony which is kind of converted into a mini room. So kind of 4 big rooms and 4 small rooms per in this area. So what I realized कि if Krishna, like Arjuna, for your efforts if you add Krishna, your efforts become easy. पूरा वर्ल्ड फाइट मार रहा है, देखा आपने, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड इसको हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं. बट दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिकम्स वेरी इजी व्हेन कृष्णा इज देयर. जैसे अकबर और बीरबल की 2-4 ऐसे जो स्टोरीज है कि ये दोनों एक बार घूमते घूमते शिकार को या घूमने को गए थे, वहां से गुम हो गए दोनों, सैन्य पीछे रह गया. फिर दोपहर हो गया, उनको भूख लगा तो बीरबल और अकबर थक गए. तो अकबर बीरबल बोला मैं भी यहाँ पे बैठ के चैंटिंग करता हूँ, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है. तो प्यास लगा है, भूख लगा है.
अकबर बोले थे कुछ समझ रहे कि नहीं, अगर प्यास लगे भूख लगे तो ढूंढने को मदद करना, पानी किधर है खाना किधर है, सब मैं अपना चैंटिंग करता और चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अकबर ऐसे ढूंढते ढूंढते गया तो फिर उसका एक घर मिला, तो उसने उधर बताया मैं अकबर हूँ यहाँ रे, हाँ भाई, उनको खिलाया। फिर वो निकल से उसको बीरबल का याद आया, वो उधर भूखा बैठा, फिर उसके लिए वो खाना लेके आया, खाना उसके सामने रखा, बड़े भाई तेरा दे खाना, लेकिन अल्टीमेटली वो बोले कि तो इधर भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन मैं ही लाया ना तेरे लिए खाना, क्या मिला तेरे को चैंटिंग, जब मैं यहाँ पे चैंटिंग कर रहा था और हमारे हिंदुस्तान का शहंशाह मेरे लिए खाना लेके आया और क्या चाहिए। तो कृष्णा टेक्स के इसके लिए वो अकबर बीरबल का एक दूसरा छोटा स्टोरी है ना, जैसे कि अकबर हर बार बीरबल को ऐसे बोलता था, ये तुम्हारा भगवान बोलता है कि मैं खुद आऊंगा तुमको लेने के लिए। न कृष्ण बोलते हैं ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार, क्या खुद क्या आता है, योगक्षेमम वहां हम, मैं मेरे भक्त का सब नीड्स कैरी करता हूँ, क्या सर्वेंट है क्या तुम्हारा, भगवान खुद सब करता है। तो बीरबल ऐसे सुन रहा था वो, और बोले जा रहा है, तो उसके बगीचे में घूम रहे थे, एक दिन हो गया, दूसरे दिन वापस घूम रहे थे, वापस उसका चालू है, क्या है तुम्हारा हिंदू रिलीजन। फिर बीरबल को गुस्सा आया, अकबर के साथ उसका छोटा बच्चा था, उसने उसको उठाया और पौंड में फेंक दिया। क्या रहे तो उसने उधर लोगों को बोला जंप मारो, तो कोई सैनिक जंप मारने को तैयार नहीं, तो अकबर ने जंप मार के बच्चे को बाहर निकाला। तो बीरबल ने वो सबको पैसा देके रखा था, कोई मदद नहीं करी, फिर अकबर सबको बचाओ मेरे को। तो फिर वो बाहर आया, बीरबल को बोला तू, मैं तेरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसका गुस्सा तू मेरे बच्चे पे क्यों नहीं कर रहा, मेरे बच्चे पे क्यों नहीं कर रहा, तुमको अगर जितना ये है तो मुझे कुछ बोलना, मेरे बच्चे को पानी में काहे को फेंकता है, पहले ये बता तू मेरे को। तो बीरबल बोलते हैं पहले तुम मेरे को बताओ कि तुमने खुद क्यों जंप मारा बच्चे के लिए, आप तो शहंशाह अकबर हैं, इमीडिएटली कैसे जंप मारा। बोले वो मेरा बच्चा है ना, बोले वैसे ही भगवान जो है हमको ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चे के जैसे, आप जैसे आपके बच्चे के लिए जंप मारते हैं खुद पर आपका बच्चा है, that's how the Lord treats you when you become his devotee, and that's how our efforts become easy। अभी इतने अकबर बीरबल चालू किया तो लास्ट स्टोरी बता देते। एक बार ऐसे ही जो शेरो शायरी करने वाले लोग रहते हैं, उसमें से एक जन अकबर के यहाँ पे आया और वो ऐसा ग्लोरीफाई करने लगा, अकबर हाँ ग्रेट हो गए, बोले आप ऐसा कुछ कर सकते हो अकबर शहंशाह, जो बीरबल की तरफ देख के बोले ऐसे आप कर सकते हो जो ये हिंदू लोगों का है, श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। तो सब दरबार वाह 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 करो, आप कभी कभी ऐसा कुछ काम करते हो जो श्री कृष्ण भी नहीं कर सकता। पूरा दरबार वाह वाह खुश हो गए ना वो लोग तो सुन के। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो बीरबल तो एग्री करता है उसके साथ, ना कैसे बोलेगा, बिकॉज 99% लोग तो वाह वाह कर चुके हैं। बोले हाँ मैं एग्री करता हूँ, तो एग्री करते तो प्रूव करो, मैं श्री कृष्ण मैं ऐसा कर सकता हूँ जो श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। बीरबल ने इतना अच्छा डायलॉग बोला, बीरबल बोले जहां पना, आप अगर किसी के ऊपर गुस्सा करते हो ना तो आप उसको उठा के आपके राज्य के बाहर फेंक सकते
ये काम श्री कृष्ण कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनका राज्य सब जगह है। His kingdom is there everywhere. So indirectly he glorified Krishna also. So this is how intelligent, and Birbal was a very very great devotee of Lord Krishna. And जो भी हम स्टोरी सुनते हैं अकबर बिरबल, that factor was that he was a devotee. He was a devotee. Even जो तानसेन जो सिंगर था, his guru was a ब्रजवासी singer. तो अकबर उसके लिए वृंदावन जाते थे सुनने के लिए. So just that factor of Krishna reduces our effort. So secret S कहाँ पहुंचे हम? E पर effort माने. उसके बाद है C. C company management. Managing the company you keep. एक बार दो सामने सामने ना क्रिश्चियन लोगों के चर्च थे और एक चर्च का जो प्रीस्ट था उसके पास दो पैरेट्स थे और वो पैरेट्स प्रे करते थे. प्रीस्ट जब प्रे करता था तो प्रे करता. रास्ते के अक्रॉस दूसरा चर्च था. तो वहां पे एक प्रीस्ट था, उसके पास फीमेल पैरेट्स थे. गंदी गंदी बातें करते. वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था उनसे. तो एक दिन वो दोनों मॉर्निंग वॉक में एक दूसरे को मिले. बोले आपके पेरेंट्स कैसे? बोले हमारे मेरे पेरेंट्स तो प्रे करते हैं. तो फिर ये बोला मेरे वो फीमेल पेरेंट्स से बहुत बेकार है, करते करते कुछ बात करते रहते. तो आप इधर उनको लेके आओ कभी हमारे पेरेंट्स की कंपनी में सुधर जाएंगे. तो दूसरे दिन सुबह ये प्रीस्ट प्रे कर रहा था, मेल पेरेंट्स भी साथ में प्रे कर रहे थे. वो सामने वाला प्रीस्ट वो दो फीमेल पेरेंट्स को लेके आया. तो जैसे एक मेल पेरेंट ने वो देखा, उसने बाजू वाले दूसरे पेरेंट को बोला stop praying, our prayers are answered. तो लोग apparently दिखते प्रे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पायस है, मंदिर में जा रहे हैं, मन में क्या चल रहा है उनके? तो आपको भी ऐसा लगेगा अरे वो ना मेरा दोस्त है, वो आता है यार, वो हर सोमवार को बाबुलना का, मंगलवार को सिद्धि विनायक जाता है, जाके करता क्या है, क्या करता है वो. सो जाना चाहिए हमको भी सारे मंदिरों में वगैरह. एंड वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट द लॉर्ड. दे नॉट आस्क फॉर समथिंग मटेरियल, बिकॉज़ हम जिनके पास मांगने को जा रहे हैं वो भगवान के भक्त है सब. अभी हमको मालूम है कि हमारे क्रूड एग्जांपल देता हूँ आपके यहाँ पे ब्रजमोहन प्रभु आते, श्रीकांत कृष्ण प्रभु आते. तो ब्रजमोहन प्रभु आप कृष्ण के भक्त है, वो एक दिन आएंगे और आप उनके सामने खड़े रह के बोलेंगे प्रभु जी मेरे ना इच्छा है मेरी शादी उधर हो जाए. मेरा क्या कनेक्शन, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, तो कोई भक्ति का बोले. वैसा ही रिएक्ट करेंगे गणपति, शंकर, सब दुर्गा देवी, दत्तात्रेय, एवरीबॉडी विल रिएक्ट लाइक दिस कि यार तुम लोग क्या मांग क्या रहे हो मेरे पास. ऑफ कोर्स दे आर बेटर देन अ एथिस्ट. हमको तो एथिस्ट से वो बेटर, एटलीस्ट वो मंदिर में जा रहे हैं, वो जाके एक दिन वो यहाँ पे भी पहुंचे. बट हमको ये समझना है कि हमको अभी हमारा कंपनी मैनेज करना है, तो प्रेफरेबली वी स्टे इन एसोसिएशन, जहाँ पे चैंट इन एसोसिएशन,
live as much as moments possible in association. Have prasad in association, study in association. जो students हैं, बहुत अच्छा आपको मेमोरीज रहेगा. मतलब मेरे भी जो आपके एज में जब मैं था, तो जो उसके जो मेमोरीज है, मैं प्रसाद बनाता था डिवोटीज के लिए. आई यूज्ड टू कुक फॉर डिवोटीज. मैं सैंडविचेस बनाता था, नूडल्स बनाता था. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग एंड फीड द डिवोटीज. जो भी हमारे केएम हॉस्पिटल में था, मैं नायर हॉस्पिटल में, जे हॉस्पिटल में था, I used to cook for them and we used to cook a feast and have offer it to Lord and enjoy. उसका एक ये मतलब. So what I'm saying is, ये जो moments which we spend with devotees, यात्रा, how many of you have been on a IYS यात्रा? तो कितने अच्छे memories है, बराबर है कि नहीं? उधर रहना, सुबह आरती. Now compare that to a Lonavala picnic. लोग दारू पी के and so always that then you एक बार आपको छसका लगा ना डिवोटीज के एसोसिएशन में रहने, you will not enjoy association of non-devotees. Of course we don't look down upon them. ये कभी गलती मत करना कि उसके नीचे देखो, अरे ये तो एथिस्ट है, ये मटेरियलिस्टिक है, ये डेमिगॉड वर्शिपर है. नो, we should understand again the first principle, self management, that Krishna is there in their heart also and they are also part and parcel of Krishna, so respect them. I am fortunate, खुद को fortunate समझो कि मुझे ये रास्ता मिला. I am so fortunate. And I pray to Krishna that they also become fortunate one day. हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमारी बहुत इच्छा रहती है कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिश्तेदार, सब लोगों को समझे, पता चले. बट नहीं, एक्चुअली आपने बहुत ट्राई किया रहेगा ना, आपके दोस्तों को, माता पिता को, चाचा चाची, अंकल, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते कन्विंस. किसी के बारे में हम 100% श्योर होते हैं कि यार ये बनेगा और वो नहीं बनता. और उसको बता रहे तभी तीसरा सुनता है वो बन जाता है. तो जिसको बनना है वो बनेगा, हम केवल प्रयास करें. सो दैट शुड बी आवर प्रिंसिपल कि कंपनी अच्छा रखे, हमारे दोस्तों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे, प्रसाद बांटे. उनसे हम कुछ नहीं ले, हम उनको दे कृष्ण भक्ति, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको क्रिटिसाइज नहीं करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर क्रिटिसाइज. तुम लोग ये मटेरियलिस्ट, डेमिगॉड वर्शिपर्स. हमको ऐसा लगता है कि हम डिवोटी बन गए तो बस. नहीं. प्रबोधानंद सरस्वती इतना अच्छा चीज बताते हैं कि किसी भी मटेरियलिस्टिक आदमी के पैर में पड़ो, उनको बोलो कि अरे तुम कितने ग्रेट हो, तुम कितने अच्छे हो, और तुम कृष्ण की भक्ति करोगे तो और अच्छे हो जाओगे. दिस इज हाउ प्रीचिंग शुड बी डन. योर फ्रेंड्स will not become devotee, your relatives will not become devotee by your preaching. They will be inspired to take up to devotional service by your behavior. If they see that this person after entering ISKCON has become more loving, more caring, they will become devotees. And if they see कि ये जब से ISKCON में गया है हमको छीतू करता है, तो why will they become? पेरेंट्स, हम घर पे यहाँ से प्रोग्राम से इंस्पायर होकर घर पे जाते हैं और पेरेंट्स को जो टीवी देख रहे हो आप बोलते हैं सब मोह माया है. So, उनको तो शौक लगेगा, वो बोलेंगे भाई तू भी देख रहा था कल तक, अभी क्या हो गया. टाइम लगता है, सबको टाइम, सबका टाइम आने का, जैसे हमारा आया वो भी बनेगा. So we should treat everybody very nicely. A devotee's behavior should be like a gentleman. When in a society, our behavior should be like a gentleman, not getting angry. सामने वाले ने गलती भी किया तो even if you are correct,
तो भी आप करेक्ट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी सॉरी सॉरी। आप बोलेंगे मैं क्यों सॉरी बोलूं जब मेरे को मालूम है मैं सच नहीं। Gentleman's behavior is always maintaining peace, harmony, serenity, be sublime. Looking this, they will feel अरे मेरे को भी इसके जैसा बनना है। That is company management. Okay? मेरा spellings बहुत weak है। S R is response management. How you manage your response. Yeah. How you manage response. Response मतलब क्या? हमारे भगवत गीता में ना 2.54 वर्स है, जिसमें अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से क्या का भाषा प्रभासित से केशव। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। See, here comes the glory of ISKCON. हम लोग सालों से ये श्लोक गीता के पढ़ रहे थे, बट ISKCON में आने के बाद समझा हमारे जो आचार्य है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने जो कमेंट्रीज लिखे हैं उसमें वो बता रहे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। तो जब अर्जुन अभी पूछता है कि मेरा भक्त बैठ आपका भक्त कृष्ण बैठता कैसा है, चलता कैसा है, बोलता कैसा है, लोग बोलेंगे तो सवाल है क्या, बाकी लोग जैसे बैठते हैं वैसे वो बैठते हैं, आप लोग कैसे बैठते हैं? आप लोग बोलते हैं नॉन डिवोटीज बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं बाकी पब्लिक वैसा ही चलता है, क्या आप कुछ अलग चलते हैं? तो उसमें अर्जुन पूछता है आपका भक्त बैठता कैसे है, मतलब जब उसके पास करने को कुछ नहीं है, एंगेजमेंट्स नहीं है, तभी वो क्या करता है। तो कृष्ण आंसर से बाय सेइंग कि जैसे एक कछुआ अपने लिम्स को जरूरत नहीं तभी अंदर खींच लेता है, वैसा ही मेरा भक्त जब उसको कुछ एंगेजमेंट नहीं है तो अपने सेंसेस को विड्रॉ करता है। तो आप भक्त है कि अभक्त है इस वर्ष पे पता चलेगा। जब आप अकेले रहते हो, आपको करने को कुछ नहीं है, तो सेंसेस ऐसे होते हैं या विड्रॉ होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली वी फेल। मेरे साथ भी होता है। वी कीप ऑन ट्राइंग, वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। सो इसके लिए हमको ये क्लासेस अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए। सो कृष्ण ने क्या बोला, जब जरूरत नहीं है तो कछुए की तरह सेंसेस अंदर अपना उल्टा हो जाते हैं। अच्छा आज प्रोग्राम नहीं है। तो फिर वो प्रभु जी फोन करते हैं, अरे प्रोग्राम नहीं था, क्या किया तुमने? फिर क्या अपना सब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब हुआ था। क्या प्रोग्राम रहता तो हम आते थे, अभी नहीं था प्रोग्राम, आपने कैंसिल किया। तो फिर तो व्हाट आई एम सेइंग इज जब सो दैट इज आवर टेस्टिंग टाइम। तो ये वर्ड्स हमेशा याद रखना। तो ऐसा कहीं कभी जब सिचुएशन आता है ना कि आपको करने को कुछ नहीं है, कभी घर में मत बैठो, अनलेस घर में कुछ काम है, ये सब्जी रखो, वो भी कुछ नहीं। बिकॉज आप आपके रूम में बैठोगे, फिर आप शुरुआत करोगे ब्रजमोहन प्रभु के लेक्चर से और पहुंच गए और जाओगे। लेक्चर सुनो, वॉक पे चले जाओ, चैंटिंग करो, किसी डिवोटी के घर पे जाओ, बात करो।
unless we reach that level, स्थित प्रज्ञ लेवल की, जब हम सेंसेस को विड्रॉ कर पाते, कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कि भाई श्रीकांत कृष्ण प्रभु ने ग्रुप पे मैसेज डाला कि आज संडे, आज शाम को प्रोग्राम नहीं है, और आप इस स्टेज पे पहुंचे हो कि ठीक है, फिर मोबाइल बाजू में रखा, वापस बेड बैग लिया, वापस 16 माला कर दो, इस स्टेज में है तो बात अलग, नहीं तो फिर बाहर जाओ, बाहर जाओ, डिवोटीज के पास जाओ, किसी को मिलो, साथ में बात करो। और माइंड ना 24 आवर उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते उससे, उसका नेचर ऐसा है। सेंसेस, दिस होल बॉडी इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, हमारा बॉडी खुद एक मटेरियल वर्ल्ड है, and it gets attracted to material only. It doesn't get attracted to spiritual unless you realize you are a soul. We are in the bodily concept. In bodily concept, body is material. It will get attracted to material. कभी ऐसा होगा नहीं कि आपका क्लास कैंसिल होगा और आप 3 घंटा राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रहे हो बैठ के, नहीं होता। अनलेस आपके साथ कोई फ्रेंड है, फिर आप लेक्चर लगाए, चल मेरे घर पे आप लेक्चर लगा के आप बैठ के सुन रहे हो, या फिर आप कुछ सॉर्टिंग कर रहे, कपड़े रख रहे हैं। स्लोली वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, कि जब एंगेजमेंट नहीं है तो आई शुड बी एबल टू विथड्रॉ माय सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। बैठता कैसा है, बोलता कैसा है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा मैनेजमेंट, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। तो बोलता कैसा है क्या था मालूम है क्या? उसके लिए मैं आपको एक पैरेट का स्टोरी बताता हूँ। एक डिवोटी ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था, तो एक पैरेट सेलर था उधर, पैरेट बेच रहा था। उसने वो डिवोटी को कहा, हरे कृष्णा वाला है क्या तुम? ये मेरे पास देखो स्पेशल पैरेट। उसका एक पैर खींचा तो हरे कृष्णा बोलता है, दूसरा खींचा तो हरे राम बोलता है। कोई भी डिवोटी घर का बोल, देखो मेरा पैर खींचा हरे कृष्णा। फिर एक दिन संडे शाम को ऐसे बैठा था वो घर पे वर्ली में, श्रीकांत प्रभु का मैसेज आया, तो प्रोग्राम नहीं है, पैरेट को देख रहा था। तो यार एक पैर खींचा हरे कृष्णा बोलता है, दूसरा खींचा हरे राम बोलता है, दोनों खींचा तो महामंत्र प्रोग्राम नहीं था ना, प्रोग्राम कैंसिल करके तो ऐसा सब आइडिया आता है माइंड। फिर उसने अपना केज खोला, दोनों पैर खींचे, तो पैरेट बोले साले गिरेगा ना, साले गाली दे। So that is response management. मतलब वो पैरेट जब तक उसको ऐसा ऐसा करे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, but when he was troubled, वो उसे गाली नहीं कर रहे। So we should not become like a parrot like devotee. कि जब तक आपको हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जब सब लोग अपने को अच्छे ट्रीट कर रहे हैं तब ठीक, जरा कुछ बुरा ट्रीटमेंट मिला तो रिस्पॉन्स क्या है, गाली। इसके लिए हम लोग इस्कॉन में आते हैं, ये वो, इसमें टिके रहना है ना आपको, तो आपका रिस्पॉन्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या मैं गया प्रोग्राम में, वो मेरे को स्वीटी नहीं मिला, आपका नाम क्या? शुभम बोले। शुभम को तो 2 बार उसने लिया। लोग लास्ट में आया था ऐसे प्रभु को रखना होता है। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट आपके साथ, you know, how do you respond to situations? How do you respond to situations? अरे वो मेरे ऊपर चिल्लाया, so how do you respond to situations? तो वो पैरेट के जैसा नहीं होना चाहिए, खाली हरे कृष्णा सुपरफिशियली चालू, और जरा पैर खींचा तो गुस्सा हो, नहीं। We have to maintain that composed nature throughout always.
ओके, सो दैट इज रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। किसी ने इंसल्ट किया, कुछ मिला नहीं, लाइफ में कुछ फेलियर आ गया, हर बार सक्सेस नहीं आने वाले। स्कूल में रहते तो सक्सेस मिलता रहता, अच्छे मार्क आ गए, अच्छे मार्क में 70% 80%, बाद में नहीं होता है। प्रोफेशनल कोर्स, जॉब में लगते हैं, कभी अच्छा जॉब, कभी बुरा जॉब, कभी लेड ऑफ होते हैं। सो वी हैव टू कीप आवर फेथ एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इमोशनल मैनेजमेंट। बट बिफोर दैट, अभी पैरेट से चालू किया ना मैं, पैरेट को कितना दो कथा हो गया ना मेरा पैरेट। तेनालीरामन जो साउथ इंडिया में थे, तो वो अपने राजा को प्रचार करते थे कि देखो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें आपको चैंटिंग करना चाहिए। केवल ये एक ही ऐसी जबान है, आपने बहुत बार सुना रहेगा, विच कैन चैंट हरे कृष्ण। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, बोला आई डोंट एग्री विद यू। उसने 100 पैरेट पाले और सबको सिखा दिया हरे कृष्णा बोलने। तो क्या बोलता है, दिस इज द ओनली टंग व्हिच वी चैंट हरे कृष्णा। ये देखो मेरे पास 100 पैरेट है, सब लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। बार 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 वो वैसे बोलते थे। जब भी तेनालीरामन बोलता था ना, वो किंग दिस इज द ओनली टंग व्हिच कैन चैंट, बोलता है ये मेरे पैरेट। एक दिन तेनालीरामन ने जाके वो पैरेट का इधर ऊपर केस था ना, नीचे ऐसा घास बीस लगा के उसको आग लगा दी। तो किंग को पता चला, किंग भाग के आया। लोगों ने बोला तेनालीरामन ने किया ये। तो तेनालीरामन को किंग ने बुलाया, बोले तुम आग लगा दिया उनके पिंजरे के नीचे, इतना मेरे और तेरा आर्गुमेंट होता था, उसमें बेचारे पैरेट के पिंजरे के नीचे आग लगाए। तो तेनालीरामन ने बोला कि किंग अभी आप वो पिंजरे को देखो, इसमें 100 पैरेट नीचे आग लगे, इसके लिए उधर उधर भाग रहे। 100 में से एक जन तो चैंटिंग कर रहा है, एक भी जन चैंटिंग नहीं कर रहा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पॉइंट जहाँ जरूरी है तभी ये लोग नहीं कर रहे चैंटिंग। When they are difficulty, they are in distress, they are not chanting, they are not remembering God. बस आप उनको दाना डालो तो हरे कृष्णा बोलते। तो we should not become like that. कि कृष्णा हमको दे रहे तो चैंटिंग करेंगे, अच्छा टाइम है तो चैंटिंग करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, संडे को भी आएंगे, बैठेंगे यहाँ पे हरे कृष्णा बोलेंगे। बुरा टाइम आ गया, हाँ भाई भगवान ऐसा कैसा किया तो हमारे साथ, मैं बहुत हो गया अभी बस नहीं, ऐसा नहीं करता। So we should, then we are becoming like those parrots. जब अच्छा है सब तो हम हरे कृष्णा वाले, जब बुरा टाइम आ गया तो छोड़ के जाए। Then E, emotion management खत्म होने को है अभी E50। आप सोच रहे प्रभु जी कि उसके बाद सेटिस्फैक्शन का भी बोलने वाले हैं। Emotional management. So basically if you see, because our mind is a material thing and it is not yet spiritualized, उसमें जो emotions erupt होते हैं ना, most of the times those emotions are also fully material, और हम वो emotions का शिकार हो जाते हैं। That emotion may be of love, may be of lust, pride, ego, whatever, anger, envy. So first thing in that management is that when these emotions overflow, we should not act. We should not act. किसी के बारे में anger आया, we should not act. If you feel lusty towards some person, we should not go and talk to him. Don't take the first step. फिर फंस गए हम लोग। एंगर आया कुछ मत बोलो, एनवी आया टॉलरेट करो, try to see good in that person. So we have to learn to manage our emotions अगर हमको satisfied रहना है। We have let the emotions flow, ignore them.
We have to learn to ignore them. That is emotional management. हम लोग उनको सीरियसली लेके बैठते, सीरियसली लेते हैं हम सारे इमोशंस को, ऐसा। And last T is time, managing time. आप सोच रहे हैं कि मैं 20 साल का हूँ, बहुत टाइम है अभी मेरे पास, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, ऐसा मैं भी सोच रहा था 20 साल पहले। I'm 50 now, 49 running, turning 50 this year, December में। अभी मेरे को लगता है आधा लाइफ खत्म है। So टाइम ऐसे निकल जाता है। आपने रियलाइज किया आप जब स्कूल में थे, 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, कितना लंबा लगता था, ऐसा लगता था कब खत्म होगा मेरा एजुकेशन और कब मैं कॉलेज में जाऊंगा। फिर कॉलेज वाले हमारे लोगों का शादी भी हो जाता था, तो हमको लगता है मेरा ही लाइफ ऐसा स्लो स्पीड में चल रहा है। फिर 6th स्टैंडर्ड, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10th, ऐसा लगता था कब बोर्ड खत्म होगा। पर आपने 10th के बाद देखा, आपको 10th के बाद आपने रियलाइज किया कि कब आपका 12th हो गया, कब आपको डिग्री मिली, कब आप जो वो समझा ही नहीं, फट फट फट। ये दरअसल आपने एक्सपीरियंस किया, स्कूल का लाइफ बहुत लंबा था। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, टाइम भी ऐसे सुन 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 फास्ट है। ओके, अनदर थिंग, मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड स्पिरिचुअल पर्सन। मेरे को याद है जब मैं चैंटिंग में एकदम 16 माला करके पढ़ाई को बैठता था ना, और 1-2 घंटे में मेरा इतना पढ़ाई होता था, और मैं ऐसा देखता था अरे 2 ही घंटा हो गया। और मेरे सामने वाला जो फ्रेंड था ना, मेरे सामने वाले रूम में रहता था, वो मेरे को बोलता था यार तो घड़ी चल ही रहा है यार, ऐसा लग रहा है घंटे पे घंटे जा रहे हैं, मेरे को लगता है रोकू इसको। So Krishna says time I am. So Krishna can stop time for a devotee. जैसे अर्जुन के लिए उन्होंने सूरज को वापस बुला लिया, लोगों छुपाया और दिखाया, रात किया फिर वापस शाम किया, विदाउट सुबह। Krishna, if you bring Krishna in your life, and Krishna says time I am. But if you remove Krishna from your life, your whole time management will be in a mess. आपने देखा रहेगा, बहुत बार ऐसे देखा रहेगा कि जब आप भक्ति बराबर कर रहे हैं ना, सब बराबर होता है। आप ऑफिस पे टाइम पे पहुंचते, आप सुबह जल्दी उठते, रात को जल्दी सोते हैं। बट जब इमोशनल इरप्शन होता है ना, लस्ट, ये वो वैसा देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे, कंप्यूटर देख रहे, 1 बजे रात को तो रो रहे हैं, फिर चैंटिंग का पूरा मेस में, फिर ऑफिस में मेस में, स्कूल में मेस में, कॉलेज में मेस, लाइफ मेस में हो जाता है। ऐसा फेज आता है। जैसे हम हमारा चैंटिंग अलाइन करते हैं, भक्ति अलाइन करते हैं, again things become peaceful, because Krishna says time. For that time management you have to do full devotion. So basically for satisfaction, secret का हमने निवानी देखा। तो we have to learn to be a nice devotee, a good devotee of Krishna. Then we can do self-management, effort management, then company management, then response management, emotional management, time management. So with that I stop here. Thank you so much. Hare Krishna.